Today we'll see about the transcription and translation. So what do you mean by transcription? Conversion of your genetic information from the DNA into RNA. Okay, so DNA is double stranded in the nature and RNA is a single stranded in the nature. Okay, so the genetic information from DNA is transcribed in the RNA and the process is known as a transcription. First we'll see structural genomics means what? Structural genomics means what? Structural genomics means structural modifies or structural information and complete protein structure, that is known as a structural genomics. These are some definitions. These definitions, that's why I have listed these definitions over here. So what do you mean by structural genomics? So it refers to a structural modifies and complete protein structure, that is nothing but the structural genomics. Now comparative genomics is nothing but the comparative gene function and phylogeny. सो कंपेरेटिव जीनोमिक्स मतलब क्या आता है कि कंपेरेटिव जीन फंक्शन, हर एक जीन का फंक्शन क्या है, एंड फाइलोजेनी, दैट इज अ कंपेरेटिव जीनोमिक्स. स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स, कंपेरेटिव जीनोमिक्स, मेटा जीनोमिक्स. व्हाट इज मीन बाय मेटा जीनोमिक्स, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. सो मेटा जीनोमिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ genome of microorganism, is nothing but the metagenomics, study of genome of microorganism. Then there are certain terms again. Proteome. Proteome is nothing but the cell repertory, that is means cell storage house of cell, storage house of cells protein. So storage house of protein in the cell is known as a proteome. Proteome is nothing but the storage house of protein in the cell. So cells repertory, that is storehouse of protein in the natural and biological function, with their natural and biological function, that is the proteome. जैसे प्रोटीन सिंथेसाइज होने के बाद में स्टोर कहाँ पे होता है, प्रोटियोम में. नाउ व्हाट इज मीन बाय ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन इज नथिंग बट द प्रोसेस इन व्हिच आरएनए इज सिंथेसाइज्ड. So ribonucleic acid is synthesized from deoxyribonucleic acid. So RNA is synthesized from DNA and genetic information in the DNA which is copied, which is expressed in the RNA, because ultimately you have to synthesize a particular functional protein and that protein should be accordance with the genetic. So that's why there is a replication, transcription and translation. Transcription is again nothing but the process of expressing the genetic information from DNA to RNA. The product formed in the transcription is known as a primary transcript. जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोडक्ट मिलता है उसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, एंड दैट इज नॉट अ फंक्शनल. सो लॉट ऑफ चेंजेस यू हैव टू मेक इन द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट एंड दैट इज नथिंग बट द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन. जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है आपका ट्रांसक्रिप्शन के बाद में, जो प्राइमरी आरएनए बनता है उसमें आपको मॉडिफाई करना पड़ता है. सो इन द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट यू हैव टू modify lot of things. Your body modifies lot of things. Okay, so primary transcript, it's subject to a post transcriptional modification to produce a finally active RNA molecule. So what is transcription? Process of conversion of DNA into RNA, so that the genetic information from RNA will be copied in the genetic information from DNA will be copied into RNA, that is known as a transcription. So we have seen this central dogma of life. They say जो genetic information is present in the DNA. So everybody has different DNA. So process of making of duplicate copies or process of making of multiple copies of DNA, okay, is known as a replication. So DNA will make its own copy known as a replication. Okay. Now from DNA, the process of making RNA from DNA is known as a transcription. From the process of making proteins from RNA is known as a translation. दिस इज नोन एज सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ. ये प्रोसेस चलते रहता है कि डीएनए रेप्लिकेट होगा. जैसे एक सेल सेल होता है आपका. सो एक सेल सेल का एक लाइफ स्पैन होता है. आफ्टर लाइफ स्पैन ऑफ सेल, सेल विल डाई. ओके, सो आफ्टर दैट न्यू सेल हैज टू बी रिप्लेस दैट died cell. So for that the cell should be identical. For that DNA must be replicated. तो उसका डीएनए का रेप्लिकेशन होगा. रेप्लिकेशन के बाद में ट्रांसक्रिप्शन होगा. ट्रांसक्रिप्शन के बाद में ट्रांसलेशन होता है. ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस. तो सेल के लिए सेल जैसे होता है न्यूक्लियस, सेल वॉल, उसके बाद में पूरा सेल का प्रोटीन. सो एवरीथिंग इज सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी. सो फॉर दैट multiplication of cell you need this process. For a multiplication of cell you need replication, transcription and translation. Human cell also and for bacterial cell also. So transcription, so replication, transcription and translation.
These are the three processes known as the central dogma of life. So bacteria भी क्या करेगा? When bacterial infection will be there in a body, so bacteria will adopt the your host body's condition and it will replicate its DNA. So DNA का replication करेगा, उसके बाद में DNA का replication करने के बाद DNA से RNA बनेगा और RNA से प्रोटीन बनाएगा और बहुत सारे और सेल बनाएगा. So for the multiplication of cell inside the host cell, a bacteria undergo this process: replication, transcription, translation. इवन आपका बॉडी का खुद का सेल अगर कोई सेल डैमेज हो गया तो उसको रिप्लेस होता है. Okay, so for replacement of the damaged cell with new cell DNA should be replicated. From DNA, RNA should be made, that is transcription, and from RNA, protein should be synthesized, that is a translation. So transcription is nothing but the synthesis of RNA from DNA. Remember. Now we'll see the next point. Okay, it is nothing but the outline of your transcription process. कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जनरल में कैसे होता है इन जनरल. सो for translation process, sorry, for transcription process you need a DNA. So DNA जो होता है आपका वो लगता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के लिए. DNA से आपका RNA बनेगा. So that is nothing but the transcription. So you need a DNA and you need an enzyme known as a RNA polymerase. Okay, RNA polymerase. So that enzyme is nothing but the hollow enzyme and it has a different cofactors. जैसे एंजाइम होता है उसमें कोफैक्टर होता है अल्फा, 2 अल्फा फैक्टर्स होता है, 2 बीटा फैक्टर्स होता है एंड 1 सिग्मा फैक्टर होता है. ओके, सो दिस RNA polymerase enzyme is required for transcription because this RNA polymerase ultimately is going to add base pairs in accordance with the DNA, complementary base pairs accordance with the DNA in the growing chain of RNA. RNA polymerase is required. This enzyme is nothing but the hollow enzyme and the functional enzyme is made up with enzyme plus cofactors and alpha, 2 alpha cofactors are there, alpha 1 alpha 2, 2 beta factors, beta 1 beta 2 and 1 sigma factor is there. Okay, so all this makes DNA polymerase. Sorry, RNA polymerase will attach to a DNA at a specific sequence. So जो RNA polymerase होता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए वो DNA को अटैच होगा at a specific sequence. जैसे यहाँ पे दिखा है. So this sequence is known as a promoter region. This sequence is known as a promoter region. So उसमें एक particular base pair sequence होगा. So उस sequence में ही जाके RNA polymerase अटैच होगा DNA को. तो ऐसा नहीं कि कहाँ पे भी अटैच होगा. So it attaches, RNA polymerase will attach to a DNA at a specific sequence known as a promoter region. Okay, and after attachment, so RNA polymerase will unwind the DNA. It will unwind the DNA. Unwind मतलब ये खोल देगा DNA को, double stranded DNA को खोल देगा. And from one parent strand of DNA, it will copy a single stranded DNA. That is nothing but the RNA. तो ये base pair ऐड करते जाएगा in accordance with the complementary strand of DNA. So that is nothing but the okay. So this transcription is nothing but the having different step. First attachment of DNA RNA polymerase to a DNA first step. Second initiation. Okay, then initiation के बाद में elongation आएगा. Then उसके बाद में termination आएगा. So it is just outline of your RNA or outline of your transcription. Formation of mRNA from the DNA. Formation of mRNA from the DNA. The process is known as a transcription. So we'll see in the detail regarding how there is a binding of RNA polymerase to DNA, how there is initiation, how there is elongation, how there is a termination. Okay. So we'll see one by one. It is just a outline. एक आपको flow समझ में आना चाहिए क्या होता है exactly. So it is just a outline of your transcription. Okay. Now we'll see transcription in the detail. So outline समझ में आ गया. So first there is a binding of RNA polymerase to the DNA. Then there will be initiation of transcription. Then there will be elongation and then termination of transcription. Okay. So outline the process of transcription. Okay. The process of transcription. First is nothing but the initiation process or in this binding of RNA polymerase to the DNA. So binding of RNA polymerase. So RNA polymerase नाम का एंजाइम जो है, so binding of RNA polymerase to DNA, that is the first thing. That is the first thing is required. Okay? So it is a prerequisite for transcription to start. For transcription के लिए क्या होना जरूरी है आपका
कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो डीएनए को बाइंड होना जरूरी है. दैट इज द फर्स्ट थिंग रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ ट्रांसक्रिप्शन. So it is a prerequisite for transcription to start. The enzyme, okay, the RNA polymerase enzyme binds to a specific region of DNA. तो ऐसा नहीं कि कहाँ पे भी जाके बाइंड करेगा. So it binds to a specific region of DNA known as a promoter region. क्या होता है? Known as a promoter region. So ये region में क्या होता है कि in this region there is a particular sequence of base pair. Okay, there is a particular sequence of base pair. So there are two sequences. Okay, there are two base sequences on the coding of DNA strand. यहाँ पे डीएनए के ऊपर पर्टिकुलर बेस सीक्वेंस होगा, उसको ही जाके आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा. एंड एज आई टोल्ड यू आरएनए पॉलीमरेज इज नथिंग बट द hollow enzyme. It is a enzyme plus cofactor. Okay, so the enzyme RNA polymerase consists of alpha factor, beta factor, sigma factor. Okay, so two alpha factors, two beta factors, and one sigma factor. Okay, so out of that, remember question आ सकता है. So out of that, sigma factor is responsible for the recognition of promoter region. Okay, the sigma factor sigma factor of RNA polymerase can recognize the initiation of transcription. मतलब क्या कि यहाँ पे सिग्मा फैक्टर जो होता है आरएनए पॉलीमरेज का, तो वो ही रिकॉग्नाइज करेगा कि वो ही ढूंढेगा कि आरएनए के ऊपर प्रोमोटर रीजन कहाँ पे. सो सिग्मा फैक्टर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज विल रिकॉग्नाइज द प्रोमोटर रीजन इन द डीएनए. ओके, डीएनए के ऊपर ऐसा कौन सा सीक्वेंस है कि जहाँ पे प्रोमोटर रीजन है. ओके, सो प्रोमोटर रीजन मतलब एक पर्टिकुलर बेस पेयर सीक्वेंस होता है. सो सिग्मा फैक्टर विल आइडेंटिफाई दैट, विल रिकॉग्नाइज दैट promoter region and will start initiation. So what are the promoter region present in the DNA? DNA के ऊपर promoter region कौन सा होता है? So this is a first होता है Prinbo box. Okay, so this is a Prinbo box or Tata box. It is also known as Tata box or Prinbo box. तो मतलब ये टाटा बॉक्स मतलब क्या? इट इज ए सीक्वेंस ऑफ 6 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर. जैसे 6 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का सीक्वेंस रहेगा, कौन सा? ये TATAAT, thymine adenine thymine adenine adenine thymine. So this is a particular sequence of 6 base pair known as a Tata box. ठीक है, तो आपको देखेंगे तो उसको टाटा नजर आएगा उसमें TATAT. So that's why it is known as a Tata box or Prinbo box. And it is a one of the promoter region. ये डीएनए के ऊपर ये सीक्वेंस जहाँ पे है वहाँ पे जाके आरएनए पॉलीमरेज वहाँ पे जाके बाइंड होगा. ओके, सो ऐसा नहीं कि कहाँ पे बाइंड होगा. दिस इज द प्रोमोटर रीजन, one promoter region known as a Prinbo box or Tata box, to which RNA polymerase will attach. And how RNA polymerase will attach? The sigma factor of RNA polymerase will find. Okay, वो ढूंढेगा कि Prinbo box कहाँ पे, Tata box कहाँ पे, तो वहाँ पे ही जाके फिर अटैच होगा. Okay, so Prinbo box or Tata box that is located near to a starting point of transcription, which is present on the DNA. Now there is another base pair region known as the 35 sequence. Okay, the 35 sequence. Okay, recognition site. So ये भी इसके ऊपर भी एक particular sequence होता है, recognition site, recognition site और promoter region of DNA. So first recognition site क्या होता है कि Prinbo box. Second क्या होता है the 35 sequence. Okay, so इसके ऊपर ये base sequence रहेंगे TTGACA located at about 35 base upstream from the site for transcription. तो डीएनए के ऊपर ये साइट्स होंगे, डीएनए के ऊपर ये पर्टिकुलर बेस पे सीक्वेंस होंगे जहाँ पे आपका आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा और वहाँ पे उसके बाद में इनिशिएशन चालू करेगा. ठीक है, सो रिमेंबर Prinbo box and this second 35 sequence. Okay, and this RNA polymerase is nothing but the hollow enzyme. It is made up of a different RNA polymerase is a hollow enzyme. It is made up of a different cofactors. कि उसमें कोफैक्टर रहेंगे जैसे अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 2 एंड सिग्मा. ठीक है, सो दीज 3 कोफैक्टर्स आर देयर. ओके, सो इट इज अ इनएक्टिव एंजाइम. ओके, इट इज इनएक्टिव एंजाइम, hollow enzyme. So sigma factor is required. Sigma factor is required. Okay, and sigma factor only can recognize the promoter region from the DNA. DNA के ऊपर कहाँ से चालू करना है आपको ट्रांसक्रिप्शन, वो कौन डिसाइड करता है? So that is decided by sigma factor. And sigma factor जैसे वो डिसाइड करता है जहाँ पे RNA polymerase बाइंड करता है, and after binding
So there will be initiation. So the enzyme plus sigma factor is the main requisite for initiation of transcription. तो ये ट्रांसक्रिप्शन के लिए वो होता है, जैसे सिग्मा फैक्टर अगर एंजाइम में नहीं रहेगा, if there is a no sigma factor in the enzyme, so there will not start a transcription. Okay? Now initiation so हो गया आपका. Now elongation. Okay? elongation मतलब क्या? So elongation मतलब chain elongation मतलब क्या? So you have to, in that case, addition of nucleotide base pairs complementary to the strand present in the DNA, कि DNA के ऊपर जो बेस पेयर है उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर ऐड करना और उसका एक सिंगल चेन बनाना, उसको बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए. ओके, नाउ हॉलो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइजेस द promoter region. In the promoter region the sigma factor is released. जैसे ही वो promoter region sigma factor उसको आइडेंटिफाई करेगा, this RNA polymerase along with the sigma factor will join that promoter region and sigma factor will be released and transcription starts. Okay, now RNA is synthesized from this 5' to 3' end. Okay, RNA is synthesized from 5' to 3' end, anti-parallel to the DNA टेम्पलेट डीएनए स्टैंड, एंटी पैरेलल टू द टेम्पलेट डीएनए स्टैंड. तो डीएनए का जो स्टैंड है टेम्पलेट, उसके अपोजिट में क्या बनेगा आपका आरएनए बनेगा इन द डायरेक्शन ऑफ 5' to 3' एंटी पैरेलल टू डीएनए टेम्पलेट. नाउ दिस डीएनए पॉलीमरेज which will add these base pairs, okay, like adenine triphosphate, guanine triphosphate, cytosine triphosphate and uridyl triphosphate. So these are the 4 base pair required. क्योंकि क्या होता है कि आरएनए में क्या होता है, एडेनिन ग्वानिन थाइमिन नहीं रहता है, थाइमिन की जगह क्या रहता है यूरेसिल. सो यूरिडिल ट्राइफॉस्फेट, सो एडेनिन ग्वानिन थाइमिन यूरेसिल दैट इज प्रेजेंट इन द आरएनए. डीएनए में क्या होता है कि थाइमिन की जगह यहाँ पे क्या आएगा यूरेसिल. So these 4 nucleotide bases are required. So these 4 nucleotide bases are added by this RNA polymerase, which is in a complementary to the parent DNA strand. For the formation of DNA, these base pairs are required. Upon addition of each neutral thread, growing chain of pyrophosphate moiety is released. तो जैसे ही A ऐड होते जाएगा, जैसे एट एडेनिन का रिक्वायरमेंट है तो एडेनिन ट्राइफॉस्फेट आएगा और एडेनिन ऐड किया जाएगा, ट्राइफॉस्फेट मोइटी रिक्वायर्ड जो है रिमूव किया जाएगा. सो अपन एडिशन ऑफ ईच न्यूट्रल टेड टू ए ग्रोइंग चेन ऑफ, ओके, pyrophosphate moiety is released. Now RNA polymerase does not require any kind of primer. तो जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में देखा है अपन ने कि देयर इज वन प्राइमर रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग ऑफ रेप्लिकेशन. सो आरएनए पॉलीमरेज डज नॉट हैव एनी प्राइमर and does not possess any exonucleases or endonucleases activity. जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में देखा था अपन ने, आफ्टर रेप्लिकेशन डीएनए पॉलीमरेज 3 हैज अ प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी और exonucleases or endonucleases activity. But in such cases, in the transcription, RNA polymerase does not have any such kind of activity. So due to lack of proof reading activity, RNA polymerase has no ability to repair the mistakes in the RNA synthesis. जैसे डीएनए सिंथेसिस में अगर कोई बेस पेयर इनकरेक्ट हो गया या फिर if there is a mistake in the DNA replication, so DNA polymerase 3 will recognize it and correct it, but such facility is not available in the RNA polymerase. तो यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन में कोई मिस्टेक हो गया, so that is a mistake, that's it, you cannot correct it. Okay, so now ये elongation हो गया, वो बेस पेयर ऐड करते जाएगा बस. ओके, नाउ टर्मिनेशन, कब तक बेस पेयर ऐड करते जाएगा, जब तक टर्मिनेशन का सिग्नल नहीं आता. और टर्मिनेशन मतलब क्या, स्टॉप. सो टर्मिनेशन, फर्स्ट स्टेप वाज इनिशिएशन, सेकंड स्टेप वाज इलोंगेशन, थर्ड स्टेप इज नथिंग बट द टर्मिनेशन. और ट्रांसक्रिप्शन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप्स बाय टर्मिनेशन सिग्नल्स. जब तक टर्मिनेशन सिग्नल नहीं आएगा, डीएनए के ऊपर रहता है ये सिग्नल, सो जब तक टर्मिनेशन सिग्नल नहीं आएगा तब तक ये आरएनए को बनाते रहेगा. नाउ टर्मिनेशन सिग्नल a transcription process stops by termination signal, which are of two types. So there are two types of termination. First one is known as row dependent termination and second one is known as row independent termination. तो first one क्या है कि row dependent termination होता है and second one row independent termination. तो row क्या है, particular protein रहता है known as a row factor. Okay, so row dependent termination, specific protein known as a row factor binds to a
ग्रोइंग चेन ऑफ आरएनए एंड टर्मिनेट्स द प्रोसेस। सो रो प्रोटीन रहता है, वो प्रोटीन क्या करेगा, वो जो आरएनए बन रहा है, चेन बन रहा है, उसके ऊपर जाके बाइंड करेगा एंड विल टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ओके, सो दैट इज नोन एज अ रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन एंड आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसोसिएशन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम डीएनए। तो रो जो है, रो फैक्टर जो होता है या फिर रो प्रोटीन जो होता है, रो फैक्टर और रो प्रोटीन, वो क्या करेगा, that will bind to a growing chain of RNA in the transcription and will terminate the process. And this row protein is also responsible for the dissociation of RNA polymerase from DNA। जो DNA को RNA polymerase bind हो चुका है, उसको भी वहां से निकाल देगा, मतलब डिसोसिएट कर देगा। ओके, so that is a row dependent termination। so I am going to explain this process in a very short, हाँ, ये शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। भले कि मैंने बहुत उसके ऊपर पढ़ा है, कल कल पढ़ा है, सो पढ़ के रखा है मैंने, तो आई एम एक्सप्लेनिंग इन द डिटेल, बट यहाँ पे जो प्रेजेंट किया है वो बहुत ही शॉर्ट में मतलब इन द सेंस बेसिक भी है प्लस एडवांस भी है। सो रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन, सेकंड वन इज अ रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। पहला था रो डिपेंडेंट, तो रो फैक्टर उसके ऊपर रहेगा and that will terminate the transcription। now row independent termination, so यहाँ पे formation of hairpins of a newly synthesized RNA and early termination is brought out। this occurs due to palindromic sequence। तो जहाँ पे repetitions होगा, adenine adenine guanine thymine 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 cytosine, so palindromes, so उसके ऊपर वहाँ पे row independent termination होगा। so that is a row independent termination। the process can be explained using this diagram। so जैसे होता है टाटा बॉक्स या फिर प्रिनबो बॉक्स, टाटा बॉक्स और प्रिनबो बॉक्स मतलब क्या, ये आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ओके, सो दिस इज योर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ओके, दिस इज योर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। सो डीएनए के ऊपर एक पर्टिकुलर बेस पेयर सीक्वेंस आएगा, जैसे प्रिनबो बॉक्स टी ए टी ए टी ए ए टी, टाटा बॉक्स, तो उसके वो रिकॉग्नाइज होगा। ओके, सो डीएनए पॉलीमरेज इज नथिंग बट द hollow enzyme consisting of DNA polymerase plus sigma factor plus alpha factor plus beta factor। So sigma factor of this RNA polymerase will recognize this promoter region कि प्रिनबो बॉक्स कहाँ पे लोकेटेड है डीएनए के ऊपर, वहाँ पे जाके अटैच करेगा ये कौन, सिग्मा फैक्टर विल रिकॉग्नाइज विल फाइंड एंड एट दैट फैक्टर ये क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज अटैच होगा। देन डीएनए पॉलीमरेज, ओके, ये अटैचमेंट देखो, डीएनए पॉलीमरेज इज अटैच्ड टू ए prime Prinbo box or Tata box। Then this there will be partial separation of these two standard DNA। double standard DNA का partial separation होगा and sigma factor will be released। बाद में sigma factor release हो जाए। So the process of transcription again you can see over here। So initiation point मतलब वहाँ पे Prinbo box या promoter region होगा। So at that place your RNA polymerase will bind। okay, sigma factor will recognize and it will bind। so initiation point मान लीजिए कि ये जो है आपका ये इनिशिएशन पॉइंट है और ये टर्मिनेशन पॉइंट है डीएनए के। सो अप टू दिस पॉइंट, यहाँ से लेके यहाँ तक जो एक स्ट्रैंड है डीएनए का, वो स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी हो जाएगा। सो लाइक दैट। सो इनिशिएशन, टर्मिनेशन, चेन इलोंगेशन। तो ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन वो सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाएगा। सिग्मा फैक्टर का काम वही है कि सिर्फ प्रोमोटर रीजन को फाइंड आउट करना और वहां पे जाके डीएनए पॉलीमरेज का अटैच होना। उसके बाद में डीएनए पॉलीमरेज सॉरी आरएनए पॉलीमरेज अपना काम करेगा। क्या करेगा, इट विल इलोंग द चेन इलोंगेशन, इट विल कॉपी द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। ठीक है, सो डीएनए पॉलीमरेज सॉरी आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से लेके एट द टर्मिनेशन पॉइंट यहाँ तक जाएगा कॉपी करते करते। सो इट विल कॉपी one strand of DNA and it will add complementary base pair like adenine triphosphate, guanine triphosphate, okay, cytosine triphosphate and uridyl triphosphate। so in accordance with the complementary base pair, तो DNA के ऊपर एक स्ट्रैंड के ऊपर जो complementary base है, मतलब यहाँ पे अगर एडेनिन है तो वहाँ पे वो थाइमिन ऐड कर देगा। सो यहाँ पे अगर एडेनिन है तो वहाँ पे वो यूरासिल ऐड कर देगा, वहाँ पे अगर गुआनिन है तो वहाँ पे साइटोसिन ऐड कर देगा, लाइक दैट। ओके, so complementary pregnant intermediate bases will be added by this RNA polymerase। Okay, so up to this point, जैसे ये point आ जाएगा termination point,
So it will terminate the process of transcription and it will release the RNA. This is a released RNA. So this is a released RNA known as a mRNA. ये mRNA ये बाद में ये DNA polymerase will be detached from the DNA. Oh, sorry, RNA polymerase will be detached from DNA. So this how again a summary of your transcription process. Okay, so this was transcription process. इसमें कोई doubt है किसी को? Now translation process. So after transcription, translation. So before that, what is meant by genetic code? So genetic code क्या होता है? What is meant by genetic code? So as the name indicates, genetic means gene, okay, or the specific crucial information. And code means what? Code means it is nothing but the it is a code word, okay? Code word like बोलते हैं ना अपन कि code word है जैसे okay. So it is a code word. Genetic code means a code word which consists of a genetic information, okay? So it is nothing but a three nucleotide basis. It is a three nucleotide basis. So genetic code is nothing but the three nucleotide base sequences present on a mRNA. Three nucleotide base sequences present on a mRNA. जो भी ट्रांसक्रिप्शन के बाद में whatever mRNA is formed by transcription, so after that there is a post transcriptional modification. तो उसमें जो रॉ mRNA बनता है उसके ऊपर कुछ मॉडिफिकेशन बनता है जैसे कैपिंग होता है, ठीक है, एंडिंग होता है, ब्लंट एंड होता है. सो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर जीपैड. तो बट आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे डीएनए से रेप्लिकेशन होकर डीएनए बनेगा और बाद में डीएनए से आरएनए बनेगा. तो आरएनए जो बनता है दैट इज नॉन एज अ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट एंड प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट नीड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन. तो वो भी आता है उसमें आफ्टर दैट. सो जेनेटिक कोड इज नथिंग बट द इट इज अ कोड ऑफ थ्री न्यूक्लियोटाइड बेस्ड सीक्वेंसेस प्रेजेंट ऑन एमआरएनए एज अ कोड वर्ड. ठीक है. सो थ्री न्यूक्लियोटाइड बेस्ड सीक्वेंसेस प्रेजेंट ऑन द एमआरएनए will form a code word for amino acid in the protein. ठीक है. So genetic code is nothing but the three nucleotide base sequence present on the mRNA. They will form a code word for amino acid in the protein, which is nothing but the genetic code. It is called as a genetic code, or simply they are known as a codons. Simply they are known as a codons. जैसे होता है एडेनिन गुआनिन थाइमिन AGT. तो ये तीन एडेनिन गुआनिन थाइमिन ये तीन बेस पर एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करेंगे, and that's why they are known as a codons. Okay, so genetic code means three nucleotide basis sequence in the mRNA and act as a code word for protein, code for amino acid in the protein, and that is nothing but the genetic code or simply codon. And the dictionary of nucleotide bases. ठीक है. डिक्शनरी ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस मतलब यहाँ पे जो डिक्शनरी रहेगा न्यूक्लियोटाइड बेसिस का मींस न्यूक्लियोटाइड बेसिस लाइक एडेनिन गुआनिन साइटोसिन यूरासिल that will decide the sequence of amino acid. The dictionary of the dictionary of nucleotide bases on mRNA will decide the sequence of amino acid, will decide the probable sequence or would be will decide the would be sequence of amino acid in the protein. Okay, so dictionary of nucleotide, that is A adenine guanine cytosine uracil on mRNA will decide the sequence of amino acid would be sequence of amino acid in the protein. Now okay, so three codons, these are the three codons known as a UAA, UAG, UGA. So these three codons they are known as a nonsense codons or termination codon. These are the three codons. Okay, UAA, UGA and UAG. UAA, UAG and UGA. Uracil adenine adenine, uracil adenine guanine and uracil guanine adenine. These three they are also known as Umber, okay, Archer and Opal. Umber, Archer and Opal. These three codons are known as a nonsense codons or they are known as a stop codon or termination codon. क्या बोलते हैं उनको? Termination codon बोलते हैं. They will terminate the protein synthesis. ये codons protein synthesis को stop करेंगे. Okay, and there are certain codon which can start the protein. तो स्टार्ट करने के लिए भी एक पर्टिकुलर कोडन का सीक्वेंस होना चाहिए तब जाके प्रोटीन वहां से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा. स्टॉप होने के लिए भी पर्टिकुलर सीक्वेंस लगता है. ठीक है. सो वो दे आर नथिंग बट दिस सीक्वेंस. जहाँ पे भी UAA, UAG आएगा, UGA आएगा वहाँ पे जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा. सो दीज थ्री सीक्वेंसेस अम्बर, ऑर्चर और ओपल
UAA, UAG, UGA. They are known as the termination codons, and they can stop the protein synthesis. Nucleotide bases, nucleotide sequence on mRNA is read. ये रिटर्न नहीं है, एक करेक्शन करना पड़ेगा यहाँ पे, ये कल ही निकला है. So nucleotide sequence on mRNA will read from 3' to 5' to 3' n. तो जो mRNA के ऊपर सीक्वेंस है वो रीड किया जाएगा, ठीक है, फ्रॉम 5' to 3' तो रीड कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए UCAGA, UCAGAT, ऐसा पूरा कंटिन्यूसली रीड हो जाएगा. और जो तीन जो होते हैं, थ्री बेस पेयर, उसके वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा अमीनो एसिड लेगा. नाउ द कोडॉन्स नोन एज द कोडॉन्स नोन एज AUG एंड CUG. ये दोनों कोडॉन जो है, कोडॉन AUG एंड समटाइम्स CUG, दे आर नोन एज इनिशिएशन कोडॉन. तो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से. ये फर्स्ट कोडॉन रहेगा AUG, इट विल कोड फॉर मिथियोनिन. ये एक AUG है, ये कोडॉन एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन, ये तीनों का बेस पेयर मिथियोनिन को कोड करेगा, मिथियोनिन. ओके, एंड CUG. ओके, दीज आर नोन एज स्टार्टिंग कोडॉन. तो स्टार्टिंग कोडॉन एंड टर्मिनेशन कोडॉन, यू शुड बी क्लियर रिगार्डिंग दिस. स्टार्टिंग कोडॉन कौन रहेंगे और टर्मिनेशन कोडॉन कौन रहेंगे. ओके, फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड. तो हर एक का जेनेटिक कोड अलग अलग होता है. ओके, सो एवरीबडी हैज अ different genetic code. So features of genetic code. First is nothing but the universality. Universality. पूरा यूनिवर्स में जेनेटिक कोड सेम है. मतलब सेम मतलब क्या, कि ये जो बेस पेयर्स होते हैं, कोडॉन्स, सो सेम कोडॉन्स विल कोड सेम अमीनो एसिड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो मतलब अगर AUG बॉडी में अगर कोड करता है मिथियोनिन को, तो आपके बॉडी में भी AUG मिथियोनिन को ही कोड करेगा. ऐसा नहीं कि AUG आपका दूसरा कोई अमीनो एसिड कोड करेगा. तो लाइक सेम कोडॉन विल कोड फॉर सेम अमीनो एसिड इन द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. दैट इज नोन एज अ यूनिवर्सैलिटी. But there are certain exceptions. There are few exceptions. Okay. For example, this AUA, adenine uracil adenine, will code methionine in the mitochondria, but will code isoleucine in the cytoplasm. तो AUA ये कोडॉन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में मिथ्योनिन को रिप्रेजेंट करता है, अमीनो एसिड को, बट ये साइटोप्लाज्म में आइसोल्यूसिन को कोड करेगा. सो देयर इज अ exception for this rule. Features of genetic code. First one is a universality. Second one is a specificity. So genetic code is a very specific. मतलब specific codon will code specific amino acid. That is a specificity. Then third one is a non-overlapping. So code is a read from fixed point to continuous base sequence. जो कोड होता है जेनेटिक कोड mRNA के ऊपर जो बेस पेयर होता है वो continuously read होता है. So it is read in a continuous from a fixed point to a fixed point. So that's why it is non-overlapping. So any addition or deletion of one or more base pair, any addition or deletion of one or more base pair on a mRNA is known as a mutation. Okay, and that can change the message sequence on mRNA. कोई अगर बेस में चेंजेस हो गया, एडेनिन की जगह थाइमिन आ गया, दूसरा कुछ आ गया, so उसको बोलेंगे म्यूटेशन, and that will change the message present on mRNA. Now genetic code is a degenerate. Genetic code is a degenerate. Degenerate मतलब क्या? So there are only 20 amino acids which are known as a standard amino acid in the universe. तो वहाँ पे सिर्फ 20 amino acid होते हैं, उसको standard amino acid अपन बोलते हैं. There are only 20 amino acids, but codons are nothing but the 61 codons. There are 61 codons which code only 20 amino acids. So that means a multiple codon will code same amino acid. ठीक है, कि कुछ मल्टीपल कोडन होंगे वो एक ही अमीनो एसिड को कोड करेंगे. सो दैट्स व्हाई इट इज अ जेनेटिक कोड इज अ डीजेनरेट. ठीक है, तो फीचर याद रखो, यूनिवर्सैलिटी, स्पेसिफिसिटी, नॉन ओवरलैपिंग एंड डीजेनरेट. ओके, कोडॉन्स ऑन mRNA विल रिकॉग्नाइज द एंटीकोडॉन्स ऑन rRNA. तो mRNA के ऊपर जो बेस पेयर सीक्वेंस होता है कोडॉन्स मतलब 3 बेस सीक्वेंसेस. So 3 base sequences on mRNA will recognized by anticodon present on rRNA. So जो RNA के स्ट्रक्चर अपन ने देखा है, mRNA का स्ट्रक्चर लीनियर होता है. जो rRNA मतलब राइबोसोमल RNA, so उसका स्ट्रक्चर जो है क्लोवर लिप मॉडल की तरह होता है. उसमें एक्सेप्टर आर्म रहेगा, एंटीकोडन आर्म रहेगा,
डी आर्म रहेगा, टी वाई आर्म रहेगा, ऐसे वी हैव सीन दैट। ओके, सो जो एंटीकोडन आर्म होता है आरएनए का, एंटीकोडन आर्म जो होता है आर आरएनए, सो आर आरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए, सो उसके ऊपर एक एंटीकोडन आर्म होता है, सो दैट विल रिकॉग्नाइज द कोडॉन्स प्रेजेंट ऑन एमआरएनए, मतलब एमआरएनए के ऊपर जो कोडॉन है, कोडॉन जो कोड करता है एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए, तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन इसमें रहेंगे, किसमें, टीआरएनए के ऊपर, तभी तो जाके एमआरएनए के ऊपर जो कोडॉन है उसको रीड करके पर्टिकुलर टीआरएनए बुलाया जाता है, पर्टिकुलर टीआरएनए विद अमीनो एसिड, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है उसके लिए। So okay, so that's why codons of mRNA will be recognized by anticodon on rRNA. Now there is one hypothesis related to this genetic code, Oval hypothesis. Oval hypothesis. It is given by Crick. It is given by Crick scientists. Okay? The tRNA can recognize one or more than one codon due to third base. Third base. Third base is known as a third base को कोई रीड नहीं करता, third base. Okay, nonsense base. Now this Oval hypothesis explains the detergency of genetic code. ये लाइन याद रखो. Oval hypothesis explains the detergency of genetic code. That is a existence of multiple codons for single amino acids. इसके ऊपर क्वेश्चन asked. Now we'll see the process of transcription. First we'll see the genetic code. So genetic code with respect to amino acid. तो जैसे बायोडैश एंड के ऊपर यूरासिल है, तो यूरासिल का ये रहेगा, जैसे मान लीजिए अगर 3 यूरासिल आता है या फिर 2 यूरासिल एंड गुआनिन आता है, सो दैट विल कोड फिनाइल अलानिन, UUG दैट विल कोड फिनाइल अलानिन, UUA विल कोड लूसिन। तो ये कोडॉन्स ये अमीनो एसिड कोडेंगे, ठीक है। सो फिनाइल अलानिन इज कोडेड बाय 2 अमीनो एसिड, 2 अमीनो एसिड codon, two nucleotide base sequences like UUU, that is one codon will code phenylalanine, UUG also code for phenylalanine. So likewise, so UGC, UGA, UGG ये सब क्या करेंगे, सेरीन अमीनो एसिड को कोड करेंगे। जैसे UAU, UAG ये क्या करेंगे, टायरोसिन को कोड करेंगे, मतलब ये जहाँ पे आएगा वहां पे टायरोसिन बुलाया जाएगा। UAA, UAG, we have seen that. So they will not code for any amino acid and they are known as a stop codon. UAA, UAG. Another one is there. ये जो दो होते हैं अपना UAA, UAG, they are known as a stop codon. UGU, UGC, they will code for a cysteine amino acid. And UGA is nothing but the stopping codon. It will not code any amino acid. Okay, तो यहाँ पे देखो आपको जो फर्स्ट 2 होते हैं कोडन में UUU, ये दो ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लास्ट वाला इंपॉर्टेंट नहीं होता। सो लास्ट वाला जो है थर्ड बेस एंड डेस्टिनेशन, तो लास्ट वाला जो बेस पे होता है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है। दैट विल नॉट, दैट द कोड ऑफ अमीनो एसिड इज मोस्टली बेस्ड अपॉन द फर्स्ट 2 बेस पेयर सीक्वेंस, तो दैट इज गिवन बाय ओवल हाइपोथेसिस। अगेन साइटोसिन अगर है एट द फर्स्ट बेस एंड फाइडेस्ट, साइटोसिन से ये बेस पेयर बनते हैं CUU, CUG, CUA, CUG, GUG, GUA, CUG, that will code for leucine. So देखो मल्टीपल कोडॉन्स यहाँ पे 1 2 3 4 कोडॉन, 4 कोडॉन, there are 4 codon which will code only leucine. So multiple codons are available to code single amino acid. That is also mentioned in the oval hypothesis. जैसे ये होता है ये 4 कोडन तो प्रोलीन को कोड करेंगे, जैसे ये 2 कोडन हिस्टीडीन को करेंगे, ये जो 2 कोडन है ये ग्लाइसिन को करेंगे, ये सब कोडन अर्जिनिन को करेंगे, अर्जिनिन अमीनो एसिड, लाइकवाइज दैट। तो ये भी ऐसा आप बाद में देख लो, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। Now AUG, so AUG will code for methionine, ये जो है AUG कोडॉन जो है मतलब एडेनिन यूरासिल गुआनिन, ये जो 3 बेस पेयर का सीक्वेंस है that will code for methionine, okay, and this is known as a initiation codon. This is known as a initiation codon. AUG is known as a initiation codon. बाकी कोडॉन का इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में दिया है। Now protein, what are the protein? Proteins are nothing but the
polymers of amino acid joined together by peptide bond. Okay, proteins are the polymers of amino acid joined together by peptide bond. Proteins are nothing but the polymer of amino acid joined together by peptide bond. तो जो अमीनो एसिड दो जैसे अमीनो एसिड सीक्वेंस जैसे मान लीजिए कि 10 अमीनो एसिड सीक्वेंस है और दे आर जॉइंड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड, सो इट इज अ स्मॉल पेप्टाइड. लाइक अगर 100 to 200 amino acid है तो it is known as a large peptide. Okay, and if such a kind of mini peptides they join together by folding and refolding known as a protein or polypeptides. So proteins are polymer of amino acids joined together by peptide bond and synthesis of protein from mRNA. Synthesis of protein from mRNA is known as a translation of mRNA. ओके, ट्रांसलेशन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस. रेप्लिकेशन मतलब डीएनए का कॉपी बनाना, ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए बनाना एंड ट्रांसलेशन मतलब आरएनए से प्रोटीन बनाना. ठीक है. सो अमीनो एसिड्स आर एडेड sequentially in a specific number and order based upon the codons present on mRNA. mRNA के ऊपर जो कोडॉन्स होते हैं उसको रीड किया जाता है एंड बेस्ड अपॉन दैट tRNA जो है ट्रांसफर आरएनए वो क्या करेगा? वो अमीनो एसिड लेके आएगा. सो इन अकॉर्डेंस विद द मैसेज प्रेजेंट ऑन mRNA. mRNA के ऊपर जो कोडॉन है 3 कोड, तो वो कोड करते हैं, कोड वर्ड है, वो कोड करेंगे पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए और वो उसके अकॉर्डिंगली एंटी कोडॉन रहेगा आपका tRNA के ऊपर. और tRNA वो जो mRNA का कोडॉन है और उसके बेसिस पे एक अमीनो एसिड लेके आएगा. कहाँ पे? राइबोसोम में. और वैसे ही ये कंटिन्यूसली प्रोसेस होता रहेगा कि एक साइड पे mRNA रीड किया जाएगा, दूसरी साइड पे tRNA अमीनो एसिड लेके आएगा और वो वहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा. ओके, we'll see the process in detail. Now growing and rapidly dividing cells. जो ग्रोइंग सेल होते हैं, रैपिडली डिवाइडिंग सेल होते हैं, दे कैन प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स. लार्ज अमाउंट ऑफ, यहाँ पे कॉन्टैक्ट हो गया तो यहाँ पे अमाउंट है, सो लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन. सो ग्रोइंग एंड rapidly dividing cells, they can produce a large amount of protein. But there are certain cells like RBC. So RBC doesn't have machinery required protein synthesis and therefore RBC cannot synthesize the protein. तो उसके प्रोटीन नहीं बनता आरबीसी में. दैट्स व्हाई आरबीसी 120 days, देयर आर लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी नोन एज 120 days. आफ्टर 120 days आरबीसी विल बी डिस्ट्रॉयड. आरबीसी में प्रोटीन नहीं बनता, बाकी सेल में बनता है. ओके, सो लिवर कैन प्रोड्यूस protein like albumin and blood clotting factors. Liver can produce albumin and blood clotting factors and export this protein into blood circulation, and therefore liver may be called as a protein factory of human body. liver को क्या बोलते हैं? protein factory of liver. liver को क्या बोलते हैं? protein factory of body. because liver has a capacity, liver will produce albumin and blood clotting factors. तो आरबीसी में याद रखो, आरबीसी में कोई प्रोटीन बनता नहीं है. रिक्वायरमेंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेंगे? स्टार्टिंग मटेरियल क्या क्या लगेगा? सो रिक्वायरमेंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. So what are the requirements? So first you needed 20 amino acids. So because you know that proteins are nothing but the polymer of amino acids. So amino acids, standard amino acid कितने होते हैं? 20. So you need a 20 amino acids. So out of that 10 amino acids are synthesized in the humans and 10 amino acids must be supplemented from the diet. And that's why these 10 amino acids known as a essential amino acid. Humans में जो 20 अमीनो एसिड लगता है उसमें कि 10 बना सकते हैं बॉडी में, 10 बाहर से सप्लाई करना पड़ता है डाइट से. दैट वाई जो बाहर से सप्लाई करना पड़ता है 10 अमीनो एसिड, 10 अमीनो एसिड नोन एज एसेंशियल अमीनो एसिड्स इन द ह्यूमंस. बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया में क्या होता है? बैक्टीरिया कैन सिंथेसाइज द अमीनो एसिड, ऑल अमीनो एसिड्स. बैक्टीरिया कैन सिंथेसाइज द 20 अमीनो एसिड्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंटेंट. सो दैट्स वाई वहां पे उनको जरूरत नहीं लगता बाहर से, ह्यूमंस को लगता है. दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस की आपके पास 20 अमीनो एसिड होना चाहिए. देन second requirement is nothing but the mRNA. Okay, so second requirement for protein synthesis is mRNA. So mRNA will give you genetic information. genetic information कौन देगा आपको? mRNA. कौन सा प्रोटीन बनाना है, किस सीक्वेंस में अमीनो एसिड ऐड करना है. So that information is present on the mRNA. Then third component tRNA. tRNA is nothing but the
ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर मतलब ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। टू कैरी द अमीनो एसिड, ओके, इट विल कैरी द अमीनो एसिड। सो ये अमीनो एसिड लाएगा कहाँ पे, जहाँ जहाँ पे प्रोटीन बन रहा है राइबोसोम्स में, वो अमीनो एसिड लाने का काम कौन करता है, टीआरएनए। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ ट्रांसपोर्ट आरएनए और ट्रांसपोर्ट आरएनए। Amino acids are covalently bound to the 3' end of the growing peptide. Each tRNA has an anticodon responsible for the recognition of code present on mRNA. तो जो एंटीकोडन जो होता है टीआरएनए में डिफरेंट आर्म्स होते हैं, जैसे एक्सेप्टर आर्म होता है, एंटीकोडन आर्म होता है, डी आर्म होता है, टीवाईसी आर्म होता है, ऐसा। Okay, so the anticodon arm on tRNA will will recognize the mRNA code and will add amino acid accordingly. Now this process require ATP, GTP and protein factors. So protein synthesis require these raw material. तो raw material क्या लगेगा प्रोटीन बनाने के लिए, 20 अमीनो एसिड लगेगा पहले तो, ठीक है। उसके बाद में mRNA, जो mRNA है वो लगेगा। mRNA कहाँ से मिलेगा, जो ट्रांसक्रिप्शन हुआ है उसमें से mRNA आता है, ठीक है। सो ट्रांसक्रिप्शन के बाद में mRNA मिलता है आपको। एंड tRNA, वो ट्रांसक्रिप्शन के बाद में जो mRNA बनता है उसमें का कुछ tRNA बनेगा वगैरह। सो अमीनो एसिड लगेंगे, mRNA लगेगा, tRNA लगेगा, उसके बाद में एनर्जी लगेगी। एनर्जी इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और जीटीपी। देन कुछ फैक्टर्स लगते हैं, प्रोटीन फैक्टर्स, that is the requirement for protein synthesis. What is the site for protein synthesis? Protein synthesis कहाँ पे होता है? So site for protein synthesis is nothing but the ribosomes. तो राइबोसोम जो होते हैं उसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है। सो राइबोसोम्स आर द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, याद रखो। व्हाट इज द साइट, साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस क्या है, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस नथिंग बट द राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है, व्हाट इज राइबोसोम? राइबोसोम्स आर नथिंग बट दे आर अ न्यूक्लियोप्रोटीन, they are a nucleoprotein. Ribosomes itself they are nucleoprotein with 65%, 65% उसमें राइबोसोमल आरएनए रहेगा, आरआरएनए, एंड 35% क्या रहेगा, प्रोटीन। सो राइबोसोम्स आर नथिंग बट द न्यूक्लियोप्रोटीन containing 65% rRNA and 35% proteins. Okay, now in the prokaryotic cell, ये राइबोसोम जो होते हैं वो बैक्टीरिया में कैसा होता है, in the prokaryotic cell, in the ribosome in the prokaryotic cell, it is made up of 70s. So जो राइबोसोम है प्रोकैरियोटिक सेल में, जो बैक्टीरिया के सेल में राइबोसोम है उसको बोलेंगे 70s राइबोसोम। यस मतलब सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर सेडिमेंटेशन, दैट इज सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, so that will denote the molecular weight. Okay, so 70s ribosome that is present in the prokaryotic cell, and 80s ribosome that is present in the eukaryotic. यूकैरियोटिक मतलब क्या, ह्यूमन सेल। जैसे मान लीजिए यूकैरियोटिक मतलब ह्यूमन सेल, प्रोकैरियोटिक मतलब आपका बैक्टीरियल सेल। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर 70s राइबोसोम एंड eukaryotic ribosomes are 80s ribosome. Okay, now these ribosomal subunit they are made up of a large subunit, ribosomes are made up of a subunits. ये जो 70s राइबोसोम है उसमें भी सब यूनिट रहेगा। ओके, सो एक रहेगा लार्ज सब यूनिट, एक रहेगा स्मॉल सब यूनिट। ओके, सो 70s सब यूनिट will be dissociated into two parts, that is a 50s and 30s सब यूनिट, and 80s सब यूनिट, 80s राइबोसोम जो होता है यूकैरियोट में, that will also split into different सब यूनिट्स। Ribosomes can split into unequal portions by EDTA, ethylene diamine tetraacid acid. EDTA, it can split ribosomes into different portions. Okay, because this EDTA will chelate the magnesium ion and manganese ion, Mn and Mg plus ions of ribosomes, which requires to hold these subunit together. तो जो राइबोसोम में, जैसे मान लीजिए कि बैक्टीरिया में होता है 70s राइबोसोम, तो 70s राइबोसोम में भी सब यूनिट होता है 50s एंड 30s। तो दो सब यूनिट दे आर हेल्ड टुगेदर बाय मैग्नीशियम आयन एंड मैंगनीज आयन, Mn प्लस और Mg प्लस प्लस। सो ये आयंस उसको होल्ड करके रखते हैं। ओके, एंड EDTA, if you add EDTA, ethylene diamine tetraacid acid, if you add EDTA to the ribosomal solution,
So they will dissociate, they will split into unequal portion, that is a 50s plus 30s in case of 70s. तो ADS में अलग होता है, वो अपन देखेंगे नेक्स्ट. Okay. So in case of prokaryotes, okay, 70s ribosome is there. Okay, 70s, 70 मतलब 70 sedimentation coefficient, 70s. So it is made up of 50s and 30s. So 70s ribosome can split into 50s and 30s. Okay. And in eukaryotes it is 80s. तो 80s जो है ह्यूमंस में होता है और वो स्प्लिट होता है 60s plus 40s. 60s मतलब लार्ज सब यूनिट एंड 40s मतलब स्मॉल सब यूनिट. So large subunit large subunit consists of L proteins plus RNA and small subunit consists of S protein. ठीक है, लार्ज सबयूनिट में ये L प्रोटीन रहेगा और स्मॉल सबयूनिट में S प्रोटीन रहेगा प्लस RNA. देयर आर टू साइट्स ऑन राइबोसोम. राइबोसोम के ऊपर दो साइट्स रहते हैं, साइट A एंड साइट P. साइट A एंड साइट P. तो साइट A का काम क्या है एंड साइट P का काम क्या है? साइट A इट इज अ बाइंडिंग साइट फॉर अमीनो असाइल tRNA. अमीनो असाइल tRNA. ये अमीनो असाइल tRNA क्या होता है? जब जब ट्रांसपोर्ट आरएनए जब अमीनो एसिड को लेके आएगा तो उसको बोलेंगे अमीनो असाइल tRNA. That is a there are two sites on ribosome. Site A, that is a binding site for amino acid tRNA, and site P, that is known as a donor site or binding site for transpeptidyl tRNA. transpeptidyl tRNA. transpeptidyl tRNA मतलब क्या? जो ट्रांसपेप्टिडिल एंजाइम होता है, ट्रांसपेप्टिडिल एंजाइम, ठीक है, that will catalyze the reaction for formation of peptide bond. ठीक है, ट्रांसपेप्टिडिल tRNA, ये बाइंडिंग उसके लिए होता है. In eukaryotes one additional site is there, that is a exit site. So prokaryotic cell में राइबोसोम के ऊपर दो साइट्स होते हैं. So prokaryotic ribosome consists of two sites, that is a one is a A site and one is a P site. तो राइबोसोम जो होता है प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया का राइबोसोम, उसमें दो ही साइट्स होते हैं, A sites and P sites. Okay, so A site is for binding site of amino acid tRNA and P site is for donor site or binding site for transpeptidyl tRNA. Now eukaryotic cell जो ह्यूमन सेल्स या फिर हायर एनिमल सेल्स होता है, उसमें क्या होता है कि ये दो साइड तो होते हैं प्लस वन एडिशनल साइड होता है, उसको बोलते हैं ई साइड्स. ओके, सो इन यूकैरियोट वन एडिशनल साइट इज देयर नोन एज ई साइट और एग्जिट साइट. एकदम शॉर्ट में मैं बोल रहा हूँ आपको, प्रोटीन सिंथेसिस आपको समझ में भी आएगा क्योंकि आप अगर बुक पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, जैसे मैंने बोला है वो समझ में आएगा आई थिंक. सो नाउ स्टेप्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. Steps involved in the protein synthesis. So first step is the activation of amino acid. Second step is the initiation. Third step is the elongation, and fourth one is the termination. So these are the steps involved in the protein synthesis of amino acid. Okay. So protein synthesis. So protein synthesis में steps रहेंगे. First, amino acid will be activated, known as the activation of amino acid. Second, protein synthesis will start, known as the initiation. Third, protein synthesis will be continued, known as elongation, and last protein synthesis will be terminated, known as termination. Okay, these are the steps. Now translation occurs in the ribosome. Translation occurs on the ribosome. Okay, mRNA is read in the ribosome in the direction of 5' to 3'. Okay, and polypeptide synthesis proceeds N terminal to C terminal. जो ट्रांसलेशन जो प्रोटीन सिंथेसिस है that occurs in the ribosome and mRNA is read from 5' to 3' direction and polypeptide synthesis proceeds from N terminal to C terminal. N मतलब अमीनो टर्मिनल, C मतलब कार्बोक्सिल टर्मिनल. तो अमीनो एसिड में दो ग्रुप होता है ना, कार्बोक्सिल ग्रुप प्लस अमीनो ग्रुप. तो N टर्मिनल मतलब जहाँ पे अमीनो ग्रुप है वो, एंड C टर्मिनल मतलब जहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप है वो. सो पेप्टाइड synthesis proceeds from N terminal to C terminal. Okay, prokaryotic mRNA, जो prokaryotic mRNA मतलब जो बैक्टीरियल mRNA होता है, that is a polycistronic. तो बैक्टीरियल mRNA is a polycistronic. polycistronic मतलब क्या कि उस mRNA के ऊपर मल्टीपल कोडिंग रीजन्स होंगे. मल्टीपल कोडिंग रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड और मल्टीपल और डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड. सो जो बैक्टीरिया का mRNA होता है दैट इज नोन एज अ पॉलीसिस्टोनिक, तो उसके ऊपर मल्टीपल कोडिंग रीजन होंगे. पॉली मतलब मल्टीपल,
सिस्टोनिक मतलब सिस्टोन कोडिंग रीजन. प्रोकैरियोटिक mRNA is a polycystonic while eukaryotic mRNA जो ह्यूमन सेल का होता है, so that is a monocystonic. Eukaryotic mRNA is a monocystonic having only one coding region for single protein. तो मतलब यूकैरियोटिक mRNA जो है वो सिंगल प्रोटीन कोड करेगा, ठीक है. प्रोकैरियोटिक mRNA जो वो मल्टीपल प्रोटीन कोड करेगी, ठीक है. बिकॉज प्रोकैरियोटिक mRNA is a polycystonic, eukaryotic is a monocystonic. Now, translation is a simple process in case of prokaryotes, and it is a little bit complex process in the eukaryotic cell. जो बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो सिंपल होता है, और जो ह्यूमंस में होता है या फिर यूकैरियोटिक सेल में होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है. नाउ यूकैरियोटिक प्रोटीन सिंथेसिस इज आउटलाइंड हियर. तो अभी जो प्रोटीन सिंथेसिस देखने वाले हो दैट इज अ यूकैरियोटिक प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, द प्रोटीन सिंथेसिस प्रॉपर. So steps involved in the protein synthesis. So first step is a first step is the activation of amino acids. Formation of amino acyl tRNA. तो amino acyl tRNA बनता है, that is the activation of amino acid. So formation of amino acid tRNA by the enzyme amino acyl tRNA synthetase. एक एंजाइम रहता है वहाँ पे amino acyl tRNA synthetase. तो ये क्या करेगा, ये tRNA जो है और tRNA को अमीनो एसिड ज्वाइन कर देगा. सो अमीनो एसिड tRNA सिंथेसिस. ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड tRNA दैट इज डन बाय अमीनो एसिड tRNA सिंथेसिस. अमीनो एसिड tRNA सिंथेसिस. सो जैसे मैंने बोला है देयर आर 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स. सो therefore there are 20 डिफरेंट tRNAs. तो हर एक RNA अमीनो एसिड के लिए एक tRNA रहेगा. So there are 20 different amino acids and therefore there are 20 different amino acyl tRNAs. 20 different amino acids होते हैं तो 20 different amino acyl tRNA रहेंगे. 20 different amino acyl tRNA synthesis are also required for protein synthesis. Enzyme, this amino acyl tRNA enzyme has a high specificity because once amino acid is attached to a tRNA, the recognition of specific order on immune. So amino acid जो अटैच होता है tRNA को, वो जो amino acid है वो बहुत ही स्पेसिफिक होता है. मतलब so tRNA has an anticodon arm that is a complementary to the mRNA, और mRNA के ऊपर जो कोड होता है उसके अकॉर्डिंगली ही tRNA amino acid लेके आएगा. तो ये amino acid अटैच होगा tRNA को by the enzyme tRNA synthesis. So that's why it is a very high specificity. Because once you attach a amino acid to a tRNA, you cannot remove it. Okay, so specific order of mRNA. So enzymes have a high specificity because once amino acid is attached to a tRNA, recognition is based upon the specific order on mRNA. That is totally depend on the tRNA, not on amino acid. तो amino acid में के ऊपर डिपेंड नहीं करता है वो कि amino acid, ऐसा नहीं कि ये वाला amino acid ये tRNA लेके जाएगा, ऐसा नहीं. वो डिसाइड कौन होता है कि द कोडॉन्स प्रेजेंट ऑन mRNA. जो कोडॉन mRNA के ऊपर है उसके एंटी कोडॉन्स कहाँ पे रहेंगे, tRNA के ऊपर रहेंगे और वो amino acid लेके आएंगे. तो mRNA के ऊपर जो कोडॉन है उसका एंटी कोडॉन tRNA के ऊपर रहेगा और उसके बेसिस पे अमीनो एसिड लेके आने वाले. तो अमीनो एसिड के बेसिस पे लेके नहीं आए. करेक्टली एक्टिवेटेड अमीनो एसिड्स दे आर हाइड्रोलाइज्ड. इनकरेक्टली एक्टिवेटेड, अगर कोई गलत अमीनो एसिड एक्टिवेट हो गया इनकरेक्टली एक्टिवेटेड अमीनो एसिड मतलब इनकरेक्ट tRNA. ओके, इनकरेक्ट अमीनो एसिड tRNA अगर आया तो if there is incorrect amino acid is activated, so that will be hydrolyzed and not used in the protein synthesis. So first amino acid attached to enzyme by consuming ATP and then transferred to 3' end of tRNA from amino acid tRNA. तो क्या होता है इसमें देखो, तो amino acid first attached to enzyme. तो इसमें दो स्टेप का प्रोसेस होता है. हाउ देयर इज एक्टिवेशन ऑफ amino acid tRNA. It is a two-step process. First, amino acid is attached to enzyme by consuming ATP, मतलब वहाँ पे ATP लगेगा and then that transferred that is transferred to a tRNA
3 डैश एंड ऑफ tRNA। तो tRNA के ऊपर भी 2 एंड होता है, 3 डैश एंड एंड 5 डैश एंड। तो पहले तो अमीनो एसिड एंजाइम को अटैच होगा, मतलब कौन सा एंजाइम, ये। So amino acyl tRNA synthase. So first amino acid will attach to amino acyl tRNA synthase, and then the amino acid will be transferred to tRNA at the 3' end. So that's how there is activation of amino acyl tRNA. So amino acid plus tRNA is known as the amino acyl tRNA. तो amino acid जो है वो प्लस tRNA जो बाइंड हो, जिसको बाइंड हो रहा है अमीनो एसिड, तो वो दोनों को बोलेंगे अमीनो अमीनो असाइल tRNA। ओके, नाउ ये हो गया एक्टिवेशन। नाउ इनिशिएशन, इनिशिएशन रिक्वायर्ड 10 यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर्स। तो जो इनिशिएशन होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, उसके लिए प्रोटीन फैक्टर्स लगते हैं, तो उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर्स। सो फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस यू नीड अ यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर्स। ठीक है, EIFS मतलब क्या, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर्स। So 10 eukaryotic initiation factors are required for initiation of protein synthesis. Some factors, there are multiple, some factors they are having multiple subunits. Initiation occurs in the following steps. Protein synthesis का initiation कैसे होगा ये, ठीक है। First one is nothing but the first step is nothing but the ribosomal dissociation. जो राइबोसोम है, ATS राइबोसोम होता है यूकैरियोटिक में, तो ATS राइबोसोम का डिसोसिएशन हो जाएगा, मतलब स्प्लिटिंग हो जाएगा। तो स्प्लिटिंग में क्या मिलेगा आपको, एक 60s राइबोसोम मिलेगा और एक 40s राइबोसोम मिलेगा। ओके, वी हैव सीन इन द प्रीवियस स्लाइड। सो फर्स्ट स्टेप इज राइबोसोमल डिसोसिएशन, सेकंड स्टेप इज नथिंग बट द फॉर्मेशन ऑफ 43s प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, 43s प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। देन नेक्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ 48s initiation complex, and next step is nothing but the formation of 80s initiation complex। ओके, तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप होगा ये इनिशिएशन। तो इनिशिएशन के लिए कितने स्टेप है, पहला स्टेप होगा राइबोसोमल डिसोसिएशन, दूसरा स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ 43s प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, उसके बाद में थर्ड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ 48s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, एंड देन लास्ट स्टेप है उसमें formation of ATS initiation complex। ठीक है, so we'll see one by one steps। so first step is the ribosomal dissociation। so you know that eukaryotic ribosomes are ATS ribosome, it will be split into these subunit। so ATS ribosome will be split into 60s and 40s subunit, and for that eukaryotic initiation factor 3 eukaryotic initiation factor 3 is required। तो ये फैक्टर मतलब प्रोटीन होता है, ये बाइंड करेगा राइबोसोम को और डिसोसिएट करेगा इसको। ओके, सो इट इज आल्सो नोन एज एंटी एसोसिएशन फैक्टर। एक बार डिसोसिएट हो गया तो ये बाइंड होके री एसोसिएशन नहीं होने देगा। यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3 that is known as anti association factor, and eukaryotic initiation factor first E। okay, so they will bind, not bind, they will bind to 40s subunit and prevent the reassociation करेगा, नहीं होने देगा। okay, so these factors eukaryotic initiation factor 3 and eukaryotic initiation factor 1A और 1 alpha, A को alpha भी बोल सकते हैं। now initiation process proper again। okay, so दो स्टेप हो गए आपका, पहला स्टेप हो गया डिसोसिएशन, सेकंड स्टेप क्या है इनिशिएशन में, फॉर्मेशन ऑफ 43s pre-initiation complex, formation of 43s pre-initiation complex। so यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 कंपोनेंट आएंगे, there are 3 components, so 3 components join together, that's why it is known as a ternary complex, it is known as a ternary complex। इसमें 3 कंपोनेंट आएंगे। पहला कंपोनेंट क्या आएगा आपका 40s राइबोसोम, ठीक है, उसके बाद में amino acyl tRNA, amino acyl tRNA, that is the first amino acid कौन सा आता है, MET tRNA I। ठीक है, so MET मतलब मेथियोनिन, tRNA मतलब अमीनो, ओके, so tRNA and I मतलब इनिशिएशन। तो फर्स्ट प्रोटीन सिंथेसिस इनिशिएशन करने वाला कौन सा अमीनो एसिड होता है, मेथियोनिन। सो अमीनो असाइल tRNA कौन सा है, MET tRNA I।
सो दैट इज द फर्स्ट अमीनो एसिड। क्यों? क्योंकि ये जो AUG है दैट इज द इनिशिएशन कोडन प्रेजेंट ऑन द mRNA। इनिशिएशन कोडन कौन सा होता है? AUG, वो कोड करता है मिथियोनिन को, दैट्स व्हाई। सो मेट tRNA दैट इज द मेट अमीनो एसिड tRNA। सो ये एक रहेगा 40S राइबोसोम रहेगा, दो कंपोनेंट हो गए, एंड तीसरा रहेगा कंपोनेंट ये इनिशिएशन फैक्टर 2, ओके, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 GTP बाउंड फैक्टर रहता है, प्लस 40S राइबोसोमल सब यूनिट, दे विल फॉर्म ए 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इलोंगेशन फैक्टर सॉरी यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3 यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1 है, दे विल स्टेबलाइज दिस कॉम्प्लेक्स। तो ये 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा कि इसमें आपका 40S राइबोसोम रहेगा, राइबोसोमल सब यूनिट रहेगा, उसमें मेट tRNA रहेगा, उसके बाद में ये यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर रहेंगे। ओके, सो देयर इज हाउ फॉर्मेशन ऑफ प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स 43S pre-initiation complex, formation of 48S initiation complex। So 48S initiation complex, so इसमें क्या रहेगा, mRNA ऐड हो जाएगा, इसमें क्या होगा mRNA। यहाँ पे क्या रहता है, 3 कंपोनेंट होते हैं, पहले कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, देयर आर 3 कंपोनेंट्स, सो 40S राइबोसोम, देन इनिशिएशन फैक्टर्स एंड इमेट tRNA, ये 3 रहते हैं। अभी क्या रहेगा, इसमें ऐड हो जाएगा mRNA। So formation of 40S initiation complex, so mRNA plus 43S pre-initiation complex, ओके। तो mRNA जब ऐड होगा, जो कॉम्प्लेक्स बना है स्टेप नंबर 2 में, तो उसको mRNA ऐड करेगा तो बनेगा 48S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, एंड बाइंडिंग ऑफ इनिशिएशन फैक्टर 4 ये फैक्टर भी रहेगा, ये इनिशिएशन फैक्टर भी रहेगा, okay, to the mRNA and then transferred to a 40, okay। so first ये भी स्टेप बाय स्टेप होता है, मतलब क्या कि पहले इनिशिएशन फैक्टर जो है, so binding of initiation factor 4F to the mRNA, and then this mRNA initiation factor complex is transferred to a this 43S pre-initiation complex to form a 48S initiation complex। Now this initiation complex scans mRNA and identifies the correct initiation codon। तो ये जब mRNA इसमें आ जाता है, तो ये जो 48S initiation complex है, that will read the mRNA chain। तो ये रीड करेगा and it will scan, it will find out the initiation codon। initiation codon कहाँ पे ये फाइंड करेगा, ओके। सो दैट इज अ 5' एंड के ऊपर AUG कोडन रहता है, 5' एंड के ऊपर AUG कोडन रहता है, दैट इज नोन एज अ कोजैक कॉन्सेंसस सीक्वेंस, कोजैक कॉन्सेंसस सीक्वेंस। यहाँ पे जैसे फाउंड आउट हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि इसके ऊपर ये क्या है, मिथियोनिन है, तो मिथियोनिन को कौन कोड करता है, मिथियोनिन को कौन कोड करता है, AUG। तो AUG कोडन कहाँ पे mRNA के ऊपर वो फाइंड करेगा, और वहां से फिर स्टार्ट हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस, ओके। सो that is the third step, formation of 48S initiation complex। Now fourth step is nothing but the formation of 80S initiation complex। So 48S initiation complex binds to a, यहाँ पे अगर binds to a 60S राइबोसोमल सब यूनिट, जो पहले राइबोसोमल डिसोसिएशन हो गया था, तो 80S का 60S प्लस 40S, तो 60S बाजू में हो गया, 40S राइबोसोमल जो सब यूनिट था उसके ऊपर ये बाइंड हो गया, कौन, मेट tRNA, और बनाया क्या बनाया, 43S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, और उसमें फिर mRNA ऐड हो गया, बना आपका 48S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अभी ये 48S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फिर से 60S राइबोसोमल सब यूनिट को बाइंड करेगा टू फॉर्म ए 80S initiation complex, okay। And this process requires energy which is provided by hydrolysis of GTP, and there is a release of initiation factors bound to 43 pre-initiation complex। तो जब 80S initiation complex बनता है, तो जो इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर, वो रिलीज हो जाएंगे। यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E and 4F, इनिशिएशन फैक्टर यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर
4E and 4F are responsible for the recognition of mRNA cap, and this is the rate limiting step in the translation. तो rate limiting step translation में कौन सा है ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन, तो याद रखो. नाउ पहले तो स्टेप हो गया आपका राइबोसोमल डिसोसिएशन, सेकंड स्टेप हो गया फॉर्मेशन ऑफ 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, उसके बाद में थर्ड स्टेप हो गया फॉर्मेशन ऑफ 48S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, उसके बाद में फोर्थ स्टेप हो गया फॉर्मेशन ऑफ ATS इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. ठीक है, अभी क्या होगा, अभी होगा प्रोटीन सिंथेसिस. सो ये स्टेप यहाँ पे हाईलाइट किया है. सो डिसोसिएशन ऑफ राइबोसोम्स, सो फॉर्मेशन ऑफ ATS इनिशिएशन. राइबोसोमल डिसोसिएशन कैसे होगा, ATS राइबोसोम है तो वो डिसोसिएट हो गया 40S में और ATS में. इस डिसोसिएशन के लिए भी ये फैक्टर्स लगते हैं, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3 एंड फर्स्ट ए, दे विल स्टेबलाइज दिस डिसोसिएशन. उसके बाद में आपका बनेगा 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. ठीक है, टर्मिनल कॉम्प्लेक्स, ये 40S राइबोसोम, उसके ये फैक्टर्स इनिशिएशन फैक्टर्स अटैच होंगे. ओके, उसमें आपका मेट टी आरएनए भी अटैच होगा. तो ये हो गया राइबोसोम और ये हो गया मेट टी-आरएनए. सो दैट इज नोन एज 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. अभी उसके बाद में क्या होगा 48S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. अभी ये पूरा 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो है 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ये पूरा की पूरा ये ओके, उसमें ये फैक्टर्स अटैच होंगे और ठीक है ये अटैच होंगे. यहाँ पे mRNA अटैच होगा, mRNA आ जाएगा इसमें, इसमें ये देखो ये सेकंड स्ट्रक्चर जो है इट इज नोन एज ओके, ये यहाँ पे mRNA आ गया ये. ठीक है, बाय यूजिंग इलोंगेशन फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर 3, 2 and 1A. So you will get this known as a 48S pre 43S initiation complex. अभी ये 48S ओके, पहले 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स हो गया, उसके बाद में 48S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स होगा. ओके, उसके बाद में प्रोटीन सिंथेसिस होगा. नाउ इलोंगेशन मतलब प्रॉपर प्रोटीन सिंथेसिस. So amino acid sequence is determined as per the codons present on a mRNA. Process takes place in a ribosome. ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, राइबोसोम में. with the high speed and accuracy in the following step. जो स्टेप्स कौन से है इसमें इलोंगेशन में, ये देखो पहला स्टेप होता है बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसिड tRNA टू द A साइट ऑफ राइबोसोमल सबयूनिट. दूसरा स्टेप होता है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन एंड तीसरा स्टेप होता है ट्रांसलोकेशन. सो फर्स्ट स्टेप बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसिड tRNA टू द A site of ribosomal subunit. Okay, ATS initiation complex. Okay, contains met tRNA. Okay, met tRNA at a P sites. P site. तो A site जो होता है वो उसका फ्री रहता है. So A site is for another amino acid tRNA. Another amino acid tRNA brought to the P site and depending upon the code present on mRNA. तो mRNA के ऊपर जो कोड है उसके हिसाब से वो P साइड के ऊपर जो tRNA आएगा वो डिसाइड करेगा, वहाँ पे अमीनो एसिड रहेगा. और बाद में उसके एनर्जी भी लगता है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ GTP और डिसाइकल. ओके, एनर्जी लगेगा और एनर्जी रिलीज होगा एंड दैट इज डिसाइकल फॉर ब्रिंगिंग न्यू अमीनो एसिड tRNA. ठीक है, तो पहले स्टेप क्या होता है इलोंगेशन में बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसिड tRNA टू द A साइड. दो साइड रहेगा इसके ऊपर, मैं दिखा रहा हूँ बाद में. सो दो साइड रहेगा. तो P साइड जो होता है, तो A साइड जो होता है वहाँ पे ऑलरेडी एक अमीनो एसिड है आपका, कौन सा इनिशिएशन अमीनो एसिड कौन सा है, मेट tRNA. ओके, सो ATS इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कंटेन मेट tRNA एट P साइड एंड A साइड जो होता है वो फ्री होता है. तो A साइड के ऊपर क्या रहेगा, दूसरा tRNA आएगा अकॉर्डिंग टू द mRNA कोडा. mRNA के ऊपर जो कोडा है उसके हिसाब से एक अमीनो एसिड tRNA लेके आएगा एट A साइड एंड उसके बाद में उसमें बॉन्ड फॉर्म होगा. ठीक है, नाउ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन. सो पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम कौन सा है यहाँ पे, पेप्टिडिल ट्रांसफरेज. याद रखो पेप्टिडिल ट्रांसफरेज विल कैटलाइज द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन which is present between 28S RNA of 60S ribosomal subunit. Hence RNA is called as a ribozyme. RNA ribozyme बोलते हैं इसको, which catalyzes the peptide bond formation. And once there is a peptide bond formation between two amino acids,
जो फर्स्ट अमीनो एसिड जो होता है आपका पी साइड पे होता है एंड सेकंड अमीनो एसिड आएगा कहाँ पे, सेकंड अमीनो एसिड आएगा ए साइड पे। तो ए साइड और पी साइड के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है और बॉन्ड जैसे ही फॉर्म हो गए वो जो एटीएस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है वो डिसोसिएट होता है, उसमें जो एनर्जी है वो भी रिलीज होगा, फैक्टर भी रिलीज होगा एंड दैट विल बी यूटिलाइज्ड फॉर अनदर अमीनो एसिड। ओके, तो जो आएगा वो ए साइड पे आएगा और जैसे जैसे नेक्स्ट आयत रहेगा वैसे वैसे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होते जाएगा। ओके, और जैसे ही कंप्लीट प्रोटीन बन गया तो वहां पे हो जाएगा ट्रांसलोकेशन। Translocation. So after a peptide bond formation, ribosome will move to the next codon. तो ये एक कोडन के ऊपर होता है, राइबोसोम अटैच टू वन कोडन ऑफ mRNA। तो जैसे ही कोडन रीड होगा अमीनो एसिड आएगा, बॉन्ड होगा तो वो नेक्स्ट कोडन पे ऊपर जाएगा। सो आफ्टर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन राइबोसोम मूव टू द नेक्स्ट कोडन, राइबोसोम मूव टू द नेक्स्ट कोडन towards the 3' end. The process is called as translocation and involves the movement of growing peptide chain from A side to P side, A side to P side. So this is called as elongation. तो elongation प्रोसेस समझ में आया। सो elongation में क्या होता है कि बाइंडिंग होता है पहले अमीनो एसिड टीआरएनए टू ए साइड, पी साइड फ्री होता है और जो कोडन कोडन रीड होता है एमआरएनए के ऊपर, उसकी बेसिस के ऊपर पी साइड के ऊपर एक अमीनो एसिड बुलाया जाता है बाय यूजिंग टीआरएनए। तो वो टीआरएनए अमीनो एसिड लाएगा वहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होने के बाद में वो जो अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स है वो डिसोसिएट हो जाएगा, वहां से एनर्जी रिलीज हो जाएगा, वो एनर्जी यूटिलाइज किया जाता है टू ब्रिंग अ न्यू अमीनो एसिड। ओके, न्यू अमीनो एसिड कैसे ब्रिंग होगा, अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट कोडन ऑन एमआरएनए। तो शिफ्टिंग होता है, वो जो राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स है वो शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोडन के ऊपर, उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। नाउ टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस आफ्टर मल्टीपल साइकिल्स ऑफ इलोंगेशन, आफ्टर मल्टीपल साइकिल ऑफ इलोंगेशन। सो इलोंगेशन साइकिल जैसे मल्टीपल साइकिल हो गए उसके बाद में आफ्टर मल्टीपल साइकिल ऑफ इलोंगेशन एडिंग ऑफ वन एसिड एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन वन स्टॉपिंग कोडन। स्टॉपिंग कोडन जो है और टर्मिनेशन कोडन, सो दे विल स्टॉप द UAA कोडन जो होता है, UAA कोडन और UGA कोडन और UCA कोडन। तो ये कोडन अगर आ गया mRNA के, so that will terminate the protein synthesis. You know, that's why they are known as termination codons. They will terminate the growing polypeptide chain. Termination codon will not have any, they will not code any specific amino acid. तो ये जो termination codon है वो amino acid को कोड नहीं करते हैं, that's why वो जहाँ पे आएंगे वहाँ पे कोई amino acid आएगा ही नहीं। So obviously वो peptide bond break हो जाएगा। So they binds to ribosome at a site and releases the factors. That is okay. That is eukaryotic releasing factor. Eukaryotic releasing factor GTP complex with the, they will form a complex with the peptidyl transferase and will cause cleavage of peptide bond between protein and amino acid tRNA at a P sites. P site using water. Water molecule is used. Okay, instead of amino acid. क्योंकि ये अमीनो एसिड को कोड ही नहीं करते तो वहां पे वाटर मॉलिक्यूल आ जाता है और वो हाइड्रोलाइसिस कर देता है पेप्टाइड बॉन्ड का एंड टू रिलीज द प्रोटीन एंड ATS राइबोसोम विल बी डिसोसिएटेड अगेन एंड mRNA विल बी रिलीज्ड। तो जैसे पहले बाइंडिंग होता है mRNA का राइबोसोम्स का वगैरह, वैसे ही पेप्टाइड होने के बाद में उसका रिलीज भी होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है। दैट्स हाउ देयर इज अ टर्मिनेशन। सो यू कैन सी ओवर हियर द प्रोसेस। ओके, सो जैसे 48S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स होगा, उसमें सब रहेगा, उसमें mRNA रहेगा, ये mRNA पूरा, उसमें राइबोसोम रहेगा 40S राइबोसोम, ये उसमें मेट tRNA रहेगा। तो ये हो गया 48S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो उसमें तो एनर्जी लगता है उसमें। अभी ये जो है ये हो गया P साइड, ये हो गया P साइड और ये जो साइड है ये हो गया A साइड। तो ये साइड रिकम है, ये साइड रिकम है, मतलब रिकम मतलब एम्प्टी है। सो ये 48S initiation complex, it will combine with the 60S ribosome and it will form a 80S initiation complex. तो ये this is the machinery for protein synthesis. प्रोटीन सिंथेसिस इसमें होगा। तो ये P साइट होता है और ये A साइट होता है। P साइट राइबोसोम का जो है उसमें क्या है, ये मेट tRNA है और A साइट के MT है, ठीक है। तो ये जो mRNA है उसके ऊपर AUG कोडन है, दैट विल कोड फॉर मिथियोनिन। तो ये यहाँ पे आके लटक जाएगा, ठीक है। और
और उसके बाद में अभी नेक्स्ट कोडन जो है ये राइबोसोम नेक्स्ट कोडन के ऊपर जाएगा, वहाँ पे जो कोडन है उसके कॉम्प्लीमेंट्री टीआरएनए वो अमीनो एसिड लेके आएगा एट अ पी साइड, एट अ ए साइड, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यू कैन सी ओवर हियर, तो पेप्टिडिल ट्रांसफरेज जो है एंजाइम पेप्टिडिल ट्रांसफरेज विल, जैसे ही नेक्स्ट अमीनो एसिड आता है नेक्स्ट कोडन के ऊपर, जैसे ये कोडन के ऊपर क्या था पहले अमीनो एसिड मिथ्योनिन, ठीक है, तो ये मिथ्योनिन है ना। तो नेक्स्ट कोडन के ऊपर जो अमीनो एसिड आएगा वो मान लीजिए कि यहाँ पे कोड किया है उसने एलानिन के लिए, तो एलानिन और मिथ्योनिन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन कौन कैटलाइज करेगा, पेप्टिडिल ट्रांसफरेज। तो ये पी साइड के ऊपर रहेगा, ये पेप्टाइड चेन रहेगा पी साइड के ऊपर, और ये साइड ऑलवेज एम्प्टी रहता है। उसके ऊपर जो जो नेक्स्ट कोडन आएगा यहाँ पे तो उसके अकॉर्डिंगली जो अमीनो एसिड आएगा वो आएगा यहाँ पे और फिर से बॉन्ड फॉर्म होगा। सो दिस प्रोसेस विल कंटिन्यूस, सो मल्टीपल साइकिल ऑफ दिस प्रोसेस विल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड। जैसे यहाँ पे भी दिखा है वैकेंट फ्री आरएनए टू द एग्जिट साइड, ये पी साइड ऑलवेज रहेगा, ये साइड ऑलवेज एंट्री रहेगा। जैसे जैसे ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता है, जैसे ही एमआरएनए के ऊपर एक टर्मिनेशन कोडन आएगा, व्हेन देयर इज अ टर्मिनेशन कोडन ऑन एमआरएनए, सो जब ये प्रोडक्ट से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, टर्मिनेशन कोडन आएगा, सो देयर विल बी हाइड्रोलिसिस एंड देयर विल बी ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड एंड रिलीज ऑफ दिस पेप्टाइड, ये पेप्टाइड रिलीज होगा। सो protein synthesis occurs in the n dash terminal to the c dash terminal। यहाँ पे ये सब होने के बाद में जब स्टॉप कोडन आएगा या फिर टर्मिनेशन टर्मिनेशन कोडन आएगा, वो प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप कर देगा और वो रिलीज कर देगा आपका प्रोटीन, ओके। और बाकी जो भी कॉम्प्लेक्स बने हैं वो सब कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली ये एमआरएनए फ्री हो जाएगा, ठीक है। जो 60 राइबोसोम था, 40 राइबोसोम था, वो भी फ्री हो जाएगा, टीआरएनए भी फ्री हो जाएगा, ठीक है। और आपको क्या मिलेगा, प्रोटीन सिंथेसिस, और जो इलांगेशन फैक्टर थे और एनर्जी वो भी रिलीज हो जाएगा। दैट्स हाउ देयर इज अ प्रोटीन सिंथेसिस। सो इनहिबिटर्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट कौन करता है? सो जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, जो वी हैव सीन दैट aminoglycosides, we are going to see tetracyclines, chlorphenicol, macrolides. So all these antibiotics they inhibit the protein synthesis. That's why protein synthesis पहले लेना चाहिए। So protein synthesis पहले लेना चाहिए एंटीबायोटिक पहले। Inhibitors of protein synthesis, streptomycin। Streptomycin क्या करेगा? Inhibit the initiation process. It inhibit the protein synthesis initiation and also cause misreading of mRNA code। mRNA के ऊपर जो कोड है उसको मिसरीड करेगा, प्रॉपरली रीड नहीं करेगा, और तो जो प्रॉपर अमीनो एसिड आना चाहिए तो वो उसके जगह पे दूसरा अमीनो एसिड आएगा, okay, and they will interfere with the normal pairing between codon and anticodon, and if there is a formation of faulty protein, so bacteria will die. Then tetracycline, they inhibit the binding of tRNA to the ribosomal complex, they inhibit the binding of amino acyl tRNA to the ribosomal complex. It can inhibit the tetracycline can inhibit the eukaryotic protein synthesis also, but tetracyclines are not permeable to the human cell। तो ये tetracyclines क्या करेंगे, बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे, ह्यूमंस को भी कर सकते हैं, बट ह्यूमंस में क्या होता है कि tetracycline एंट्री नहीं, tetracycline will not get it entry into inside the cell, so that's why humans में नहीं होता। Puromycin, it is similar to amino, okay, structure of this puromycin is similar to amino acyl tRNA, and that's why it get incorporated instead of अमीनो एसिड टीआरएनए। तो अमीनो एसिड टीआरएनए की जैसे स्ट्रक्चर होता है प्यूरोमाइसिन का, तो बजाय अमीनो एसिड टीआरएनए की जगह ये प्यूरोमाइसिन ही वहां पे जाता है, किसमें, राइबोसोम में, एंड दैट्स व्हाई later this puromycin get incorporated into peptide chain and causes the release of peptide, and that's how it inhibit the protein synthesis. Now puromycin inhibit the protein synthesis in both prokaryotic cell as well as eukaryotic cell. Now next one is a chloramphenicol, competitive inhibitor of enzyme known as a peptidyl transferase। देखो कहाँ कहाँ पे एक्ट होता है। So chloramphenicol inhibit the peptidyl transferase and interfere with the with the elongation peptide chain। Now erythromycin जो है, erythromycin is a kind of macrolide antibiotics। It is a macrolide, it binds with the 50th ribosomal subunit of bacterial ribosome and inhibit the translocation step। Then diphtheria toxin जो होता है, it prevents the translocation in the eukaryotic protein synthesis by inactivating the
इलोंगेशन फैक्टर है F2। नाउ ये जो प्रोटीन सीरीज बनाए, सो प्रोटीन जो बनाए दैट इज नोन एज अ प्राइमरी ट्रांसलेट। जो प्रोटीन बनाए अभी उसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसलेट, एंड प्राइमरी ट्रांसलेट नीड्स सर्टेन मॉडिफिकेशन। तो प्राइमरी ट्रांसलेट जो प्राइमरी प्रोटीन बनाए दैट इज नॉट अ फंक्शनल प्रोटीन, वो फंक्शनल प्रोटीन नहीं होता है, तो उसमें चेंजेस करना पड़ता है। सो फंक्शनल प्रोटीन विल हैव 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, सो फोल्डिंग रीफोल्डिंग होगा उसमें, और तब जाके उसमें चेंजेस होके वो फंक्शनल प्रोटीन बनेगा। सो प्राइमरी ट्रांसलेट इज inactive. So newly synthesized protein is not always active. So three-dimensional structure is essential for its biological function. Few protein can attain the correct conformation. जो conformation होता है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का, तो वो करेक्ट नहीं होता है। कभी कभी कुछ प्रोटीन अटेम्प्ट करता है कॉन्फ़िगरेशन करेक्टली, बट अदर जो बाकी प्रोटीन्स होते हैं उसमें नहीं होता है। सो फ्यू प्रोटीन्स कैन अटेम्प्ट करेक्ट कन्फॉर्मेशन, बट अदर प्रोटीन्स नीड हेल्प ऑफ अनदर प्रोटीन्स। जो कुछ प्रोटीन होते हैं उनके कन्फॉर्मेशन के लिए, करेक्ट कन्फॉर्मेशन के लिए दूसरे प्रोटीन का हेल्प लगता है, एंड सच काइंड ऑफ प्रोटीन्स दे आर नोन एज चार्पेरॉन्स। चार्पेरॉन्स, ओके, चार्पेरॉन्स। So those kind of proteins which chaperones. So few protein can attain correct configuration after synthesis, but other proteins require help of specialized protein to get correct configuration, conformation. So that is nothing but the chaperones. Chaperones is the term originally used. जैसे प्रोटीन को आप हीट करते हो, so denaturation होता है, so there is a loss of native structure of protein after heating. जैसे आप अंडा बॉईल करते हो ना, coagulation होता है, is a native loss of structure of protein. तो वो रिकरेक्ट करने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होते हैं, उसको बोलते हैं चापेरॉन्स। चापेरॉन्स, उसको बोलते हैं चापेरॉन्स। ओके, सो चापेरॉन्स आर द प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द करेक्ट कॉन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। ओके, इसमें दो दो सिस्टम होता है, HSP70 सिस्टम होता है, सो दैट इज रिक्वायर्ड फॉर करेक्ट कॉन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, एंड चापेरोनिन system होता है that is required for folding. So if you want to read in the details you can read from books. Now proteins misfolding and diseases. अगर प्रोटीन का फोल्डिंग जो है करेक्ट नहीं होगा तो उस कारण क्या होता है, डिसीज होता है, पर्टिकुलरली सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस जो होता है दैट इज अ कॉमन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज। ऑटोसोमल रिसेसिव सिस्टिक फाइब्रोसिस जो होता है, ठीक है, तो उसके कारण होता है कि मिस फोल्डिंग, इम्प्रॉपर फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन बनता है उसका प्रॉपर फोल्डिंग नहीं हुआ तो क्या होता है, डिसीज होता है। सो इम्प्रॉपर फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन रिजल्ट इन द रैपिड डिग्रेडेशन एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। इट इज अ कॉमन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज ड्यू टू अल्टर्ड प्रोटीन। सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर। सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर, शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, CFTR. So mutated CFTR cannot fold properly and gets harder, glycosylated, transported and degraded, और उसका डिपॉजिट आपके लंग्स में डिपॉजिट होता है, उसको बोलते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस। There are certain neurological diseases where there is a collection of aggregation of misfolded protein in the cell. There are partially degraded and they are partially degraded products. मतलब कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसीज में भी क्या होता है, मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन जो है, मिसफोल्डेड प्रोटीन वो एक्युमुलेट हो जाता है और उनके डिग्रेडेशन प्रोडक्ट एक्युमुलेट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं प्रायोन्स। उसको बोलते हैं प्रियॉन्स। सो प्रियॉन्स मीन्स प्रोटीनस infectious agent. The term is used for represent them collectively. Prions, okay. Then there are certain diseases like mad cow disease, Creutzfeldt-Jakob disease, Alzheimer disease, Huntington disease. These are the examples of neurological disease where there is a presence of viral protein. Post translational modification, ठीक है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, तो प्रोटीन बनने के बाद में उसमें मॉडिफाई करेंगे। तो फोल्डिंग डीफोल्डिंग तो ऑलरेडी डिस्कस किया। देन अगेन उसके बाद में ट्रिमिंग होता है, कुछ प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस होता है, ओके, एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस। देन इंटेलिन जो इंट्रॉन्स होता है, इंट्रॉन्स एमआरएनए के ऊपर इंट्रॉन्स जो होता है वो रिमूव किया जाता है, उसको बोलते हैं इंटेलिन। देन स्प्लाइसिंग, कोवेलेंट चेंजेस, कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है, उसमें कुछ ऐड करना है नहीं, so that is known as a post translational modification. See the summary of translation. क्या है summary? जो DNA होता है आपका डबल स्टैंडर्ड DNA, डबल स्टैंडर्ड DNA,
उससे बनता है आपका सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए। उसके बाद में जो राइबोसोम में एमआरएनए, राइबोसोम में रीड होता है एमआरएनए, रीड हो जाएगा उसके ऊपर जो कोडन से, तो टीआरएनए आपका क्या करेगा, अमीनो एसिड लेके आएगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा पेप्टाइड ट्रांसफरेज के हिसाब से, और बाद में ये पेप्टाइड ग्रोइंग चेन रहेगा, ऐसा ये पेप्टाइड बनेगा, ये बनते रहेगा जब तक टर्मिनेशन कोडन आएगा यहाँ पे, तब तक ये बनते रहेगा। जब टर्मिनेशन कोडन आएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा और ये प्रोटीन रिलीज होगा, ठीक है। सो अमीनो एसिड ये रिक्वायरमेंट रहता है, अमीनो एसिड का टीआरएनए रिक्वायरमेंट है उसका, अमीनो एसिड टीआरएनए, इसको बोलेंगे अमीनो एसिड टीआरएनए, टीआरएनए प्लस अमीनो एसिड टीआरएनए, अमीनो एसिड लगेगा आपको। उसके बाद में एंजाइम पेप्टाइड ट्रांसफरेज, तो ये होता है सेल में। तो मान लीजिए ये बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस है, 70s राइबोसोम जो है, 70s राइबोसोम किसमें होता है, बैक्टीरियल, इट इज अ बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस, so bacterial protein synthesis, so these are the targets, ये सब टारगेट्स होते हैं एंटी माइक्रोबियल ड्रग,